Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. Today I would like to talk about a topic which perhaps is being spoken and being debated on television and being written in the newspapers, etc. Too much, and I'm not very fond of that. I avoid discussing such topics because my main intention of coming to you every week or in 10 days is talking about how can we make our children's life safe, how can we make them healthier, how can we make them exploit their potential to the fullest. But then when I read an article in one of the Hindi newspapers, Rajasthan Patrika, by Atul Kanik ji, it forced me to talk about it so that my parents and my teachers and other people who really watch my video would be able to understand how can we really safeguard our children's future. So the issue which you would have got an idea is about a particular video or some sort of episode was there in which somebody had spoken very, very bad about parents, and then when it was blown out on social media, then things happened like this, that the man had to say sorry for that. And in between, because when something came out, other episodes of the same series or whatever they were doing were also there on social media sites. So those also became public, and the words used, the sentences used were so offensive that it should not have been there on social media at all. So when this debate was going on, some people were of the opinion that why should we promote such people who are doing bad to the society, because they want publicity, hence they have got the publicity. So it should have been ignored as such and nobody should have spoken about it. There is another point of view in which people say that if we don't really don't talk about it and we don't stop it here itself, then it will grow further. So it will become a problem for everyone. So I was a little confused. Both those points of view seem to be perfectly all right, because sometimes this negative publicity also really make these people, though so-called famous, I would call them infamous, but they are happy with that. This is what they are trying to do probably. So when after reading this article where the writer has mentioned about Gresham's law, in which he says that bad money dries out good. Though this particular law was related to the things in economics, but then I realized that it applies to every walk of life. बुरी चीजें अच्छी चीजों को बड़ी आसानी के साथ रिप्लेस कर रही हैं, ड्राइव आउट कर रही हैं, और अगर हम लोग इसके ऊपर कोई समाज मिल करके और गवर्नमेंट्स मिल करके कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीजें हाथ से बाहर हो जाएंगी, जो फिर सामाजिक ताना बाना है हमारा खराब हो जाएगा। अब देखिए कि ये चीजें इतनी पब्लिक, देखिए मैं ये कहूं कि इस तरह की चीजें कभी बात नहीं की जाती होगी, बट दिस वाज इन क्लोज डोर्स। व्हेन कुछ लोग बैठे हुए उन्होंने कभी कोई बात कर ली तो ठीक है, वो बाहर नहीं आती थी। अभी क्या है कि जो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे आपका ट्विटर है और यूट्यूब है, सो दीज आर सो इजीली अवेलेबल। और आप जानते हैं कि जिस एपिसोड की मैं बात कर रहा हूं उसमें सो कॉल्ड ग्रेट कंटेंट क्रिएटर वाज इन्वॉल्व्ड। तो एक इतना आसान हम सब लोगों के लिए वो एक तरह बड़ी हमें सुविधा मिली है। आज मैं भी अगर आपसे बात कर पा रहा हूं तो एक YouTube चैनल की वजह से आपसे बात कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चैनल्स हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज शुड बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग गुड अराउंड, not the negatives around. Now, in the name of freedom of speech or expression, we can't do anything and everything in public. That should be avoided. Because मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिविजुअल की फ्रीडम अपनी जगह है। अगर ये हमारे जो इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे हैं, एडोलिसेंट्स हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, अगर उन बच्चों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं तो इसका बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, हम सब लोग सरकारों से अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई वो सरकारें इस
चीजों को रोके, वो अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेंगे भी, लेकिन हम लोगों का भी तो फर्ज बनता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो आप जानते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट भी होता होगा। मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ यूजर्स विच वी आर हैविंग इन इंडिया, इफ आई टॉक ओनली ऑफ इंडिया ऑन यूट्यूब, फेसबुक और दैट, दिस इज अलार्मिंग. I tell you, around 33% of our population is active user on YouTube channel. Look, around 20% of our population is active on Facebook. Around 26% of our population is active on Instagram. So this number is quite a large number. You can understand. I mean, 33%, one third of our people are hooked to YouTube, and this includes even the young children as well. Because though they are not allowed below a particular age, but then there are accounts of the children who really go to watch some other stuff and then come across such violent videos or maybe very very negative things which are there on social media. तो अब सवाल ये उठता है कि जी हम करें क्या। देखिए, मैं तो एज ए टीचर अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरी सबसे जो हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, नाउ दीज चिल्ड्रन विल become adult later on, we all know it very well. लेकिन उसमें आप देखिए कि अगर जैसा माहौल अब हम इनको देंगे, अगर हम ये माने कि सारे ये सोशल मीडिया साइट्स बंद हो जाएंगी या ये प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे या सब लोग सुधर जाएंगे, ये लोग इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होंगे जो नेगेटिव बातें कर रहे होंगे, जिनको मतलब कुछ भी बोलने में शर्म नहीं आती, और सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि जो लोग वहां जाते हैं सुनने, वो तालियां बजाते हैं, वो उसके ऊपर हंसते हैं. नोबडी रिडिक्यूल्स देम दैट भाई आप ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं. देखिए, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि आदतें छोटी छोटी बनती हैं, हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो फिर लगता है कि भाई अब तो मुश्किल हो गया, और उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है. तो जब अगर आप बचपन से ही हम अपने बच्चों को ये चीजें बताएंगे कि भाई आपको जब किसी से बात करनी है यू हैव टू स्पीक रिस्पेक्टफुली, और यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये बात मानी गई है, एंड परहैप्स इट इज एवरीवेयर, इट्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री, दैट पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड द मोस्ट, द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड द मोस्ट. जब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस की जब बात आती है, देखिए आप ये कॉमेडी शोज टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, अदरवाइज भी अवेलेबल हैं, तो उनमें इतनी फुअड़ता होती है कई बार, और वहां पर लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और हम लोग घर में बैठ के देख रहे होते हैं उसको. कई बार हाँ, कुछ चीजें कभी कभी आवाजें उठती हैं और उसके अगेंस्ट बातें होती हैं, बट वो दीज कंटिन्यू सेम वे. तो ये सारी की सारी जो ये इकोनॉमिक्स है, अगर हमने सारा बाजारवाद के नाम पर इतना सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो फिर सोसाइटी का तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा. और कुछ लोग जो बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा है कि जब इसके ऊपर सवाल उठाया गया तो इन्हीं में से कुछ एफआईआर दर्ज भी हुई हैं, तो उनमें एक सामने आ रहे हैं किसी एक्स पर या कहीं पर कि देखिए जी पुराने जमाने में तो देखिए हमारी संस्कृति ऐसी थी. आप ना उन चीजों से अपनी फुअड़ता को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, वो चीजें बहुत ही अलग थी, और आप जो जिस तरह से गलत चीजें परोस रहे हैं लोगों के ऊपर सामने, वो चीजें बिल्कुल अलग हैं. आप अपने घर में बैठ के कुछ भी करिएगा, नोबडी विल स्टॉप यू from that, but if you are going to impact the young minds negatively, I mean the questions will be raised and action should be taken. वो तो होना ही चाहिए. और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को, जो आज मान लीजिए 30-40 साल की उम्र के हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम इन चीजों को, देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये एक तरह का उसको हम प्रमोट ही कर रहे हैं. और जहां तक अगर मैं इन एपिसोड्स की बात करूं या कुछ और भी, मैंने पहले भी कुछ इस तरह की बात आई है कि अपने आप को पॉपुलर और डिफरेंट दिखाने के चक्कर में लोग इतना कुछ गलत बोल जाते हैं, इतना अलग बोल जाते हैं कि उनको खुद को नहीं समझ आता कि हमने बोल क्या दिया. और आजकल ये बड़ा आसान हो गया कि पेरेंट्स के खिलाफ बोलना, टीचर्स के खिलाफ बोलना, या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना ही, और वो भी बहुत नहीं. आपको किसी चीज में गलत लग रहा है, आप रेस्पेक्टफुली भी तो कह सकते हैं, उनको संयमित शब्दों में और वाक्यों में भी तो कह सकते हैं. उसके लिए आपको मतलब बेढंगे शब्द यूज करना या बहुत ही नेगेटिव शब्द यूज करना तो जरूरी नहीं है. अगर कोई बताना चाहता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, तो उसको बताने का एक तरीका है, सवाल पूछने का एक तरीका है.
मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए उस तरह से बोल दो जिसको चाहे। मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट अगर नहीं करेगा कोई तो फिर मतलब कैसे समाज चलेगा? क्योंकि फॉर मी आई मीन नोबडी इज बिगर देन पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो उनको उनको सम्मान देना, उनके बारे में अच्छी बात करना, ये हम सबका धर्म है। और ये सबको इस बात को मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में तो ये चीजें इतनी से अच्छे से पहले से मानी जाती थी। वी ऑलवेज हैड सोसाइटी विच अलाउड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सब सुनते थे दूसरों की बातें, लेकिन वो सारी बातें हमेशा मर्यादित दायरे में होती थी। वो कभी भी ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी किसी को बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, अपशब्दों का इस्तेमाल कर लिया। और देखिए, अगर हम इन चीजों को, मैंने कहा ना कि अगर इन चीजों को हम अपने बच्चों को इनसे अवॉइड नहीं करेंगे। अब अवॉइड करने का किसी ने सवाल पूछा कि सब वो तो यूट्यूब पे बच्चों को वीडियो देखने पड़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा बताना पड़ेगा और उनके ऊपर थोड़ा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी कि इस तरह के वीडियो पर के ऊपर वो कोई ध्यान ना दें या उनको ना देखें। क्योंकि कई बार आपने ये सुना होगा, जो मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है, कि कई बार बच्चे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, घर वाले भी अचंभित होते हैं और जो अच्छे नहीं होते हैं कई बार, तो और टीचर्स भी अचंभित होते हैं और उनसे पूछा जाता है आपने सीखे कहां से? टीचर सोचते हैं कि शायद घर में सीखा है, घर वाले सोचते हैं कि शायद स्कूल में किसी ने सीखा। और सच्ची बात यह है कि वो कई बार आजकल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, क्योंकि वहां पे कैजुअली इतना, मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल इतना आराम से कर लेते हैं। चाहे उसमें गाली तो मतलब हैज बिकम वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर पीपल। आई मीन दैट्स नॉट राइट। जो चीजें सही नहीं है उनको हमें बोलना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? अपने बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव होने से कैसे बचाएं? उसके लिए तो एक सिंपल, मैं तो हमेशा कहता हूं, एक सिंपल तरीका है कि आप अपने बच्चों से बात करेंगे लगातार। और आपको, मैं कहता हूं, यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर दैट। सो यू हैव टू अवॉइड अप्रिशिएटिंग सच थिंग्स एट ऑल। तो ये जो जल्दबाजी की बात होगी कि जल्दी मैं फेमस हो जाऊं, जल्दी मेरे पास पैसा आ जाए, जल्दी मैं नई चीज कर दूं, ये थोड़ा संभलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी अच्छी चीज इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती है। जो हम बात फेमस होने की करते हैं ना, बहुत जल्दी फेमस हो जाएं, वो फेम बहुत जल्दी अच्छे से तो नहीं यूजुअली मिलता है, मेहनत से ही मिलता है। और मेहनत करके अगर फेम लेना है, आपको अच्छा काम करके फेम लेना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कोई इतनी आसानी के। तो हम जो अपने बच्चों को कई बार, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, उसको थोड़ा सा हमें वापस कंट्रोल करने का पड़ेगा। हर चीज उनको फटाफट मिल जाए, 10 मिनट में ये मिल जाए, 2 मिनट में ये हो जाए, उत्तर मुझे फटाफट मिल जाए, मैं बहुत जल्दी अपना सब कुछ प्राप्त कर लूं, बहुत जल्दी अपना कोर्स, मतलब ये चीजें संभालनी पड़ेंगी। हर चीज, कुछ चीजें नेचुरल तरीके से भी होनी चाहिए और रादर ज्यादातर चीजें नेचुरल तरीके से होनी चाहिए। उनको हम बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल जब बनाने की कोशिश करेंगे तो चीजें तकलीफ देंगी। और ये भी हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अच्छा काम, अच्छा रिजल्ट थोड़ी मेहनत से मिलता है और थोड़े सब्र के साथ मिलता है। मतलब वो पेशेंस उसके अंदर चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा पेशेंस खत्म हो जाता है तो हम फिर ये इस तरह की कुछ चीजें करते हैं कि हम जल्दी फेमस हो जाएं। और आजकल चूंकि बात सिर्फ लाइक्स और इसकी आ गई है, तो लाइक्स आप देखेंगे कि whenever somebody talks sensible, I mean you may not have those many likes, but when somebody talks very nonsense things, absolutely useless things, तो बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी पॉपुलर हो गए तो वो ठीक था। हमें अपने बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि वही जल्दी पॉपुलर, मतलब वो पॉपुलर हो गए तो सब ठीक कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और जहां तक आपके कंटेंट बनाने की बात है, कुछ बच्चों के बारे में जो बनाते हैं उनके मन में भी ये आता है कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत करके ये बनाया, मुझे क्या मिला? भाई उसके लिए आप गलत काम थोड़े करेंगे कमाने के लिए। आपको जल्दी पॉपुलर हो, ज्यादा पैसा मिल जाए, उसके लिए गलत कंटेंट थोड़ा बनाएंगे, गलत चीजें थोड़ा करेंगे। तो गलत करेंगे तो गलत करने और भी बहुत सारे, फिर ये क्यों कर रहे हो? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें इस बैलेंस बैठाना पड़ेगा। अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको हम, जो क्रिएटर इकोनॉमी की आजकल बहुत बड़ी बात हो रही है, वो सही है अपनी जगह, बट दैट शुड नॉट ड्राइव us away from our responsibility of being very responsible citizen who would not be harming the fabric of the society and would not be putting our children at loss in comparison to the rest of the world. तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो एक सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। हम चाहे कोई वीडियो बनाएं, चाहे हम कोई बात करें, चाहे हम कोई किताब लिखें, हमें
जो समाज में कमियां हैं उनको सामने रखने का हक हम सब लोगों को है और हर एक को ये करना चाहिए। बट किसी को हार्म करें, किसी को हम रिडिक्यूल करें, ये हक हमें किसी ने भी नहीं दिया है। वो भी बड़े सभ्य तरीके से होना चाहिए, उसी को हम सभ्य समाज बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम इस बात पे ध्यान देंगे कि अपने बच्चों को हम इन चीजों से थोड़ा सा बचा कर रखें। उनको ये बताएं कि चाहे कोई भी किसी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज कोई यूज करता है वो गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत हो रहा है, हमें उससे बचना पड़ेगा। और जब हम अपने आप इन चीजों को करेंगे तो हमारे बच्चे भी इस बात को, उनको अगर ये चीजें मिलेंगे भी सामने तो वो अवॉइड कर देंगे। मेरे को इस बात की पूरी उम्मीद है हमारे जो बच्चे हैं, जो इंप्रेशनेबल एज है, अगर हम उनको ठीक से समझा पाएंगे कि भाई ये चीजें आप थोड़ा, आपको रास्ते में कांटे भी मिल सकते हैं, इन कांटों से कैसे आपको बच के निकलना है, अगर हमने उनको ये बता दिया तो बहुत बड़ी हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। और मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोला, मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट इस टॉपिक में कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, लेकिन चूंकि इसमें हमारे बच्चों को भी बहुत नुकसान हो रहा है और फिर जब वो बच्चा कोई शब्द कहीं इधर उधर से इस तरह का पिकअप करता है या इस तरह की सोच अपने अंदर डेवलप करता है, उसकी गलती तो नहीं थी, उसको तो मिली ना, एक किसी ने दी ना, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या मॉनेटरी गेन के लिए, और वो बच्चा हमारा उसका विक्टिम बना। सो व्हाई शुड वी अलाउ आवर चिल्ड्रन टू बिकम विक्टिम ऑफ सच थिंग्स? तो हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इनको तो बिल्कुल हमें फेमस नहीं करना। हम इसलिए मैंने ना शो की आपसे बात कर नाम लिया है, ना मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम लिया, बिकॉज आई डोंट वांट देयर नेम्स टू बी स्पोकन एट ऑल in front of our children. They cannot be the role model. Role models will always be our parents, our teachers, our all those leaders who are doing great for the country, sacrificing everything for the society and the country. मैं आप सब लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा, कुछ ऐसा ना हम करें इन सब बहुत जल्दी फेमस होने के लिए, बहुत जल्दी धन कमाने के लिए, कि जिसके लिए हमें बाद में खुद को पछताना पड़े या हमारे परिवार या समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। इसी संदर्भ में मैं जिस आर्टिकल से प्रेरित हुआ ये वीडियो बनाने के लिए, अतुल कनक जी का, उन्हीं के आर्टिकल की बात की, जो उन्होंने अंत में कुछ लाइनें लिखी हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि बाजार में अपना स्थान बनाने की लालसा में कुछ भी करने के लिए आमादा लोगों को समझना होगा कि सोने की लंका रावण के पास हो सकती है, लेकिन काल की सीमाओं के भी परे यश तो उसी को जाता है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर जीवन जिया हो। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होना तो हम सबके लिए आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, लेकिन उनके चलाए रास्ते, उस जो अच्छे रास्ते हैं, उन रास्तों को अपना करके अपने ध्येय को प्राप्त करना, अपने गोल को प्राप्त करना, उस जगह पहुंचना जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोग सबका भला कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि आप जो मैंने लास्ट में लाइनें आपसे शेयर की हैं, इस पे ध्यान देंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।